سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری میں میرے تمام بزرگوں کو، میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں، مقدس زبور کی کتاب میں لکھا ہے، آئے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو کر میرے نام کی حمد و ستائش کرتے ہیں وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ آج میرے عزیزو، ہم خوش ہیں، کتنے لوگ خوش ہیں؟ سب خوش ہیں۔ ہمیں نعرہ مارنا چاہیے، لیکن ادھر تھوڑا سا مشکل ہے، ذرا میں زور سے نہیں بول سکتا، پھر بولوں گا، نہیں تو پہلے نمبر پہ نعرہ ہی مارنا چاہیے یسوع، کیونکہ جب بھی آپ اوپر پہ ہاللویا کا نعرہ ماریں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ وہ مبارک خدا ہے۔ ہم مبارک خدا ہے اور زندہ خدا ہے، ہم اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں تو ہماری آواز کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو میرے عزیزوں، میں تھوڑا ڈیم بولوں گا۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت نئے ہمارے بھائی بہن آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ ہمارے چرچ میں آئے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند ہمارے چرچ کو اور زیادہ برکت دے، اور یہ جو نئے بہن بھائی آئے ہیں ان کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کو کامیاب اور کامران کرے۔ پریز گاڈ۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے، جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ ایک بہت موٹا تازہ آدمی ہے، وہ ادھر گرا ہوا ہے، اس کے نتھروں میں دم نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اس کو کبھی نہیں بولیں گے کہ یہ بھائی زندہ، اس کو بولیں گے ڈیڈ باڈی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان بہت ہے، اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ بھی کچھ نہیں۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور خاص کر اپنے محترم پاسٹر شہزاد صاحب کا اور باقی تمام خادمین کا اور پوری کلیسیا کا، جن کے وسیلہ سے مجھے خدا نے یہ موقع دیا۔ تو میرے عزیزو، جب بھی خدا کا پاک کلام سنیں، یہ میری ایک نصیحت ہوگی، ڈھیلے ہو کر نہیں سنیں، خدا کے خادم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنیں، تاکہ خداوند کی پاور، خداوند کی اسپرٹ، خداوند کی طاقت، خداوند کا کلام آپ تک پہنچے اور آپ برکت پائیں۔ پریز گاڈ۔ تو میرے عزیزوں، آج خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس کو نکالیے جی۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس امثال کی کتاب، اس کا 18 باب، اس کی 21 آیت۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس امثال کی کتاب، اس کا 18 باب، اس کی 21 آیت۔ ایک آیت سے آج ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے۔ جی، کلیسیا میں سے جس کو خداوند کا پاک روح ہدایت کرے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھا مقدس امثال کی کتاب، اس کا 18 باب، اس کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، موت اور زندگی، کیا جی؟ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، آج میرا ٹاپک جو ہے موت اور زندگی ہے، زبان نہیں ہے۔ موت اور زندگی
ज़बान के काबू में है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस इंसान की किताब में लिखा है 21 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की और अपनी ज़बान की निगाहबानी करता है। इंसान 21 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की और अपनी ज़बान की निगाहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। प्रेज़ गॉड। क्या करता है? अपनी जान को मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से, मुश्किलातों से, और भी कोई मसला है तो उससे क्या रखता है? दूर रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है मौत और जिंदगी है। मेरे अज़ीज़ों, मौत क्या है? मौत का मतलब है मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, इंतकाल कर जाना। मौत का मतलब क्या है? इंतकाल कर जाना। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मौत जो है, आज मौत का नाम लेते हैं तो पहले तो लोग बहुत डरते थे, आज नहीं डरते। हर आदमी, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बुजुर्ग ये नहीं कह सकता कि मैंने मरना नहीं। जी कोई कह सकता है? हाथ उठाए। नहीं कह सकता, क्योंकि खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस जलाली पाक कलाम में से पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 24 और 25 आयत में लिखा है। जी पहला पत्रस पहला बाब उसकी 24 था 25 आयत में लिखा है, चुनाचा जी बस घास की मानो जी प्रेज गॉड जी थैंक यू और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानो। घास तो फूल सूख जाता है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कलाम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। प्रेज गॉड जी। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम अब तक कायम रहेगा। प्रेज गॉड। खुदा का बंदा पतरस रसूल फरमाता है, हर बशर घास की मानिंद है। हमारी जिंदगी कैसी है? घास की मानिंद है। घास तो सूख जाती है। क्या करती है? सूख जाती है। थोड़े टाइम के बाद जब उसको धूप पड़ती है सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम अब तक कायम रहेगा। हर बशर, हर इंसान, कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने मरना नहीं। कोई बशर कह सकता है? नहीं कह सकता। हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान और शौकत, रुपया, पैसा, दौलत, बेटे, बेटियां, गाड़ी, बंगला, ये क्या? घास के फूल की मानिंद है। कैसी है? घास के फूल की मानिंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। खुदावंद का पाक कलाम अब तक कायम रहेगा। जब हम ये जानते हैं कि आदमी की उम्र कितनी है, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक 70 बरे भी, 80 बरे भी, आखिर नु फिर भी फना। प्रेज गॉड। भाई इश्तियाक का जो मैसेज है, मैंने इससे कोई बात नहीं की, लेकिन ये खुदा उनकी मर्जी भी तो बराबर मिल रहा है। 70 बरे भी, 80 बरे भी, आखिर नु फिर भी फना। जब आदमी बूढ़ा होता है ना, तो उसको सोचता है 60 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गई, तो सोचता है कि बस सभी नजदीक पहुंच गया। लेकिन हमने क्या सोचना है? हमने जिंदगी ये देखनी है कि हमने इस दुनिया को छोड़ना है। 70 बरे भी, 80 बरे भी, आखिर नु फिर भी फना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेज गॉड। हमें क्या करना चाहिए जी? खुदा के साथ वफादारी करनी चाहिए। जितनी देर जिंदा रहे क्या करें? वफादारी करें। खुदा के साथ वफादारी करेंगे, ये भी सब लोग जानते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 18 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। क्या करता है? जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा, ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। शरीर की शरारत उसी के लिए होगी और सादत की सदाकत उसी के लिए होगी। प्रेज़ गॉड। ये खुदा का पाक कलाम हमें फरमाता है, हमें बताता है जी। क्या लिखा है?
हिजकिय्याल नबी का सहीफा उसका 18 बाब उसकी 20 आयत में लिखा, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा, ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। शरीर की शरारत उसी के लिए होगी और साधक की सदाकत उसी के लिए होगी। हमें ये देखना पड़ेगा। दुनिया में तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, हमारे बेटे आ जाते हैं, हमारे भाई आ जाते हैं, हमारी बहनें आ जाती हैं, इसकी हेल्प करो। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम क्या फरमाता है, जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा, ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। शरीर की शरारत उसी के लिए होगी और साधक की सदाकत उसी के लिए होगी। जब ये हम सब कुछ जानते हैं तो हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए जी? कैसी होनी चाहिए भाई? वफादार होना चाहिए, वफादारी इख्तियार करनी चाहिए खुदावंद यसुम सिनास्ती के साथ, क्योंकि उसने हमारे साथ वफादारी की। उसने दो पैरों में पसली में नेज़ा और सर पर कांटों का ताज पहनकर हमारे लिए सलीब पर कफारा हुआ। उसने सलीब पर अपना पाक खून बहाकर हमको खरीद लिया, ताकि हम उसके पाक खून के खरीदे हुए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यसुम सिनास्ती हमें बचाना चाहता है, हलाकत से बचाना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं भाई इश्तियाक से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा एक मरतबा जरा पढ़ें। प्रेज़ गॉड। जी 18 बाब 20 आयत से 23 आयत। अच्छा 20 आयत। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। साधक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चलकर जो जायज और रवा है करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो ना मरेगा। वो सब गुनाह जो उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब ना होंगे। वो अपनी रास्तबाजी में जो उसने की जिंदा रहेगा। खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। खुदावन के जिंदगी और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। खुदावन क्या चाहता है भाइयों? खुदावन चाहता है शरीर जो है अपनी रवश से, अपनी आदत से क्या करे, बाज आए और जिंदा रहे। खुदावंद को कोई खुशी नहीं है कि शरीर हलाकत में मर जाए। आमीन आमीन। खुदावंद नहीं चाहता कि शरीर जो है वो हलाकत में मर जाए। प्रेज़ गॉड। खुदावंद चाहता है कि शरीर क्या करे, तौबा करे और जिंदा रहे और मुझसे बरकत हासिल करे। प्रेज़ गॉड। आज मेरे अजीजों, हमने अपनी लाइफ में देखना है, सबसे फ्रंट में मैं है। मैं अपनी जिंदगी में देखूंगा क्या मैं शरीर तो नहीं हूँ, क्या मैं खुदा के कलाम से पीछे तो नहीं हट गया। प्रेज़ गॉड। अगर पीछे हट गया तो भी वक्त है, अभी हम वापस आ सकते हैं। प्रेज़ गॉड। एक हवाला और पढ़ेंगे भाई इश्तियाक, वो थोड़ा लंबा है जी। हिजकिय्याल 3 बाब उसकी 16 आयत से 21 आयत। हिजकिय्याल नबी का सहीफा उसका 16 जी 16। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और 7 दिन के बाद खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज़पुर्स तुझसे करूंगा। आमीन। क्या खुदावंद फरमाता है कलाम मुकद्दस में? हिजकिय्याल नबी पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। क्या लिखा? और 7 दिन के बाद खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। वो क्या हुआ? निगहबान हुआ, खातम बना, पास्टर बना, एल्डर बना, डीकन बना। वो क्या हुआ? खातम बना, मुकर्रर हुआ। प्रेज़ गॉड। खुदावंद ने उसको क्या बोला? आए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। हम जो है खुदा के खादम लोग, किधर हमें खुदा उनका पाक कलाम मिलता है? किधर से? खुदा से मिलता है। और हम अपने लोगों को क्या करते हैं? आगाह करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। क्या करते हैं हम? खुदा का कलाम आगाह करते हैं। तू मेरे मुंह का कलाम सुन
اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے, ان کو واضح کر دے, ان کو بتا دے کہ خداوند کیا فرماتا ہے. جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تجھے آگاہ نہ کرے, اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آئے اور اپنی جان بچائے. جب ہم خدا کا پاک کلام کھل کر نہیں بتاتے تو کیا کرتے ہیں, ہم خدا کے مجرم بن جاتے ہیں. پریز گاڈ. کیا کرتے ہیں, خدا کے مجرم بن جاتے ہیں. تو کیا لکھا ہے کلام مقدس میں, باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا, لیکن میں اس کی باز پرس تجھ سے کروں گا. پریز گاڈ. اس کی باز پرس کیسے کرے گا خداوند؟ خادم سے کرے گا. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو. دوسرے سے نہیں کرے گا, آپ سے نہیں کرے گا, بھائی سے نہیں کرے گا, وہ پاسٹر صاحب سے کرے گا, پاسٹر شہزاد صاحب سے کرے گا, مجھ سے کرے گا, اور جو خدا کا خادم لوگ جو ہے, جو خدا کے مذبح پر کھڑا ہوتا ہے, اس سے کرے گا. پریز گاڈ. کیونکہ خداوند جو فرماتا ہے, اس نے اس کے نبی کو خدا نے بولا کہ جا کر اپنے لوگوں کو بتا دے. پریز گاڈ. وہ مقرر ہوا, نگہبان مقرر ہوا. جی بھائی اشتیاق آگے بڑھے انہیں ایسے. جی. لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی برکرداری میں مرے گا. پریز گاڈ. ہیلیلویا. وہ کیا کرے گا, اگر تو نے آگاہ کر دیا, بتا دیا, اگر اس نے تیری بات نہیں مانی, اگر وہ مرے گا تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا, اپنے گناہ میں مرے گا. پریز گاڈ. اس کی بات پرس میں تو اس سے نہیں کروں گا, میں اسی سے پوچھوں گا کہ میرے خادم نے تو تجھے خدا کا پاک کلام سنا دیا, بتا دیا, اگر تو اپنی بری روش سے باز نہیں آیا اور وہ مر جائے گا تو بری ہے. پریز گاڈ. اپنی شرارت میں مر گیا, وہ خود بھگتے گا. پریز گاڈ. آگے کیا لکھا ہے, اور تو نے اپنی جان کو بچا لیا. تو نے اپنی جان کو بچا لیا. پریز گاڈ. میرے عزیزو, ہم کھل کر میسج اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی جان کو بچا سکیں. پریز گاڈ. خداوند کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو خداوند ہمیں پوچھے گا. یہ مت مائنڈ کیجئے کہ خدا نے عدالت نہیں کرنی. آگے میں خدا کا بات سنتے ہیں. جی. اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے پریز گاڈ اور گناہ کرے, ہیلیلویا, اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں پریز تو گاڈ, وہ مر جائے گا, ہیلیلویا, اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا. پریز گاڈ. تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا پریز اور گاڈ. اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا, پریز گاڈ. اور تھینک یو. میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. پریز گاڈ. ہیلیلویا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, اور اگر راست باز اپنی راست بازی کو چھوڑ دے. پریز گاڈ. راست باز کون ہے, ہم لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اگر ہم اپنی راست بازی کو چھوڑ کر کیا کریں, گناہ کرنے لگ پڑیں, گناہ کے پیچھے چلیں. پریز گاڈ. کیا لکھا ہے, اور اگر راست باز اپنی راست بازی کو چھوڑ دے اور گناہ کرے, اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے, اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا. پریز گاڈ. جب ہم میسج دیتے ہیں تو ہمارے تمام خادم لوگ, ہم لوگ جب وہ میسج دیتے ہیں ہم سب سنتے ہیں, وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں. خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے, خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے. پریز گاڈ. تو کیا آگے لکھا ہے, اگر راست باز ہی اپنی راست بازی کو چھوڑ دے اور وہ کیا کرے, گناہ کرے. پریز گاڈ. رکھوں گا اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا, اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا, اور میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. پریز گاڈ. جی آگے بھائی. لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے تو وہ یقیناً جیے گا, اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی. پریز گاڈ. تو نے کیا کیا, اپنی جان بچا لی. تو نے راست باز کو بول دیا, خدا کے خادم لوگوں کو بول دیا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے, اس سے باز آؤ. اگر وہ نہیں باز آئیں گے تو وہ خود ہی پکڑے جائیں گے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا, نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. شریر کی شرارت اسی کے لیے ہوگی اور صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی. آج ہم نے اپنے خادم لوگوں کو بھی ہم آگاہ کرتے ہیں, ہم بھی آگاہ ہوتے ہیں جب وہ میسج دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, اگر وہ جان بچائے گا تو وہ بچ گیا, ہماری باز پرس جو ہے ختم ہوگی, ہم خدا کے حضور بری ہو گئے, ہم خدا کے حضور کیا ہو گئے, بری ہو گئے. پریز گاڈ. اسی لیے میرے عزیزو, خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس زبور کی کتاب, اس کا
13 ज़बूर उसकी आयत नंबर 3 में खुदा का बंदा दाऊद नबी फरमाता है, ज़बूर नंबर 13 उसकी आयत नंबर 3, आए खुदावंद मेरे खुदा मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मुक़द्दस दाऊद नबी क्या फरमाता है? आए खुदावंद मेरे खुदा, दुआ करता है अपने खुदा से, क्या फरमाता है? आए खुदावंद मेरे खुदा मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर, मेरी आंखें क्या कर? रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। क्या हो? मौत की नींद आ जाए। प्रेज़ गॉड, वो खुदा से दुआ कर रहा है, खुदावंद मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें रोशन कर दे, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, इस दुनिया से चले जाऊं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आगे क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। हालेलुया, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम सब भाई हैं, सब हमारी बहनें हैं, सब हमारे बुजुर्ग हैं, सब हमारे खुदा के खादम लोग हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो अबलीस है। प्रेज़ गॉड, कौन है? अबलीस हम सबको गुमराह कर देता है। प्रेज़ गॉड, उसकी ड्यूटी यही है, जैसे हमारी ड्यूटी है कि हमने अबलीस के खिलाफ खुदावंद से दुआ मांगनी है। अबलीस की तमाम तस्वीरें इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे चर्च से जाती रहे, तमाम मसीह चर्चों से जाती रहे और खुदावंद अपने जलाल को थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या कर? खुदावंद मेरी आंखें रोशन कर दे। आंखें रोशन कैसे होती हैं? प्रेज़ गॉड, खुदा के कलाम से। प्रेज़ गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्र। आज हमने दुआ मांगनी है खुदा से। अरे खुदा, अगर हमारी आंखों के अंदर अंधेरा आ चुका है, मैं तमाम चर्चेस के लिए, तमाम खातमीन के लिए, तमाम मसीही लोगों के लिए, दुनिया के जितने भी खादम लोग हैं, सब के लिए दुआ मांगता हूँ कि खुदा हम सब की, मेरी भी, अगर हम भटक चुके हैं तो वापस आए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदा रह सके और खुदा से बरकत हासिल कर सके और इब्लीस को शिकस्त दे सके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ गॉड। जी, आंखें कैसे रोशन हो सकती हैं? खुदा के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को, इसीलिए मुक़द्दस दाऊद नबी फरमाता है, आए खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। प्रेज़ गॉड, गुनाह को तोड़ने के लिए एक ही चीज है, एक ही जिंदा खुदावंद का और सच्चा पाक कलाम है, जो रात तब्दील, जो बदल नहीं सकता। प्रेज़ गॉड, ना बदलेगा ज़माना लाखों मगर, लेकर खुदा का पाक कलाम कभी ना बदलेगा। मेरे चीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम से अपने दिल को क्या कर सकते हैं? पाक हो सकते हैं। इसलिए खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, मुक़द्दस ज़बूर की किताब उसका 34 ज़बूर उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, खुदावंद से डरो। कैसे दिल पाक हो सकता है? खुदावंद से डरो। कैसे आंखें रोशन हो सकती हैं? खुदा से डरने के साथ। खुदावंद से डरो, उसके मुक़द्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। कब्र के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताबिक। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो। क्या लिखा है? कब्र के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। उसकी 9 और 10 आयत में क्या लिखा है? खुदावंद से डरो और उसके मुक़द्दसों। खुदावंद से कौन लोग डरते हैं जी? बात साहब, मुकद्दस लोग, पाक लोग, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। जब हम पाक बन जाएंगे तो हमारे अंदर खुदा का खौफ आ जाएगा, खुदा का डर आ जाएगा। हम डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में आएंगे, उसकी हजूरी से बरकतें लेकर जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, खुदावंद से डरो और उसके मुक़द्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। प्रेज़ गॉड, उनको कमी है? बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, और खुदावंद के ताल्लुक किसी नेमत के मुताबिक ना होंगे। बबर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन खुदावंद का ताल्लुक मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कभी भी भूखा नहीं रह सकता। खुदावंद उसको हर नेमत से आसूदा करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ये खुदावंद का वादा है।
खुदावंद से डरो। डरना जरूरी है मेरे अजीजों। जब हम डरेंगे तो मेरे अजीजों हमारे अंदर खुदा का खौफ आएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इंसान की किताब में लिखा है खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। कैसे अदावत है? बदी से। हमने इंसानों से अदावत नहीं रखनी, हमने इब्लीस के साथ अदावत रखनी है, जो हमें क्या करता है? बदी में ला डालता है। खुदावंद से डरो, और उसके मुकद्दसों हमने खुदावंद से डरना है। और अदावत कैसे रखनी है? इब्लीस से और बदी से। प्रेज़ गॉड। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो बदी से अदावत रखेगा, वो बदी से दुश्मनी रखेगा, वो बदी से प्यार नहीं करेगा, बल्कि बदी से दूर रहेगा। प्रेज़ गॉड। आज मेरे अजीजों हमने खुदा के पाक कलाम में यही सीखना है, क्योंकि हमने मरना है। जी पासा मरना है कि नहीं? जी मरना है। मरना है। 70 बरे भी, 80 बरे भी, आखिर में फिर भी सुनाना ऐसी जिंदगी छोड़कर जाएं। प्रेज़ गॉड कि लोग जाने कि ये खुदा का खादम था, इसने हमें मैसेज दिया, इसने हमें पुकारा, इसने खुदा का कलाम हम तक पहुंचाया, और हम इसके वसीला से बरकत पाएंगे। आज वक्त है, आज हम जिंदा हैं, हमारे नफ्सों में जिंदगी का दम है, हम जीती जान है। जब इस फानी दुनिया से चले जाएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला है। जिंदी जाने यसू नू मना ले बंदिया, मरने दे बाद वेला नहीं होना लगेगा जी नहीं। जिंदी है, जिंदे ही तौबा करनी है। मर गए तो गए, खत्म, कहानी मुक गई। प्रेज़ गॉड। आज मेरे अजीजों वक्त है, हम जिंदा हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? मौत और जिंदगी। मौत कितने किस्म की है जी? मैं ही बताऊंगा, कोई बात जी। मौत 2 किस्म की है मेरे भाई। मौत क्या है? 2 किस्म की मौत है। एक क्या है? रूहानी जिस्मानी मौत। एक क्या है? रूहानी मौत। जो लोग जिस्मानी मौत में मर जाते हैं वो क्या करते हैं? इब्लीस में मर जाते हैं, वो इब्लीस के पैरोकार बन जाते हैं, उनको सिर्फ जिस्म तक रहता है। और जो रूहानी मौत मरते हैं वो मसीह में मरते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मुर्दे मसीह में मरते हैं वो मसीह में जिंदा किए जाएंगे। जो मुर्दे मसीह में मरते हैं, मसीह में वो लोग मरते हैं जो अपनी बदी को खारिज कर जाते हैं, जो अपना ईमान, भरोसा, यकीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर रखते हैं, जो उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो उसके वसीला से बरकत पाते हैं। प्रेज़ गॉड। और मेरे अजीजों जिस्मानी मौत वो लोग मारते हैं जो अपनी जिंदगी शरारतों में, बदियों में, लूतियों में गुजार कर चले जाते हैं। प्रेज़ गॉड। कलाम मुकद्दस में लिखा है 2 मौत। एक मौत क्या है? मुकद्दसीन की मौत है, और दूसरी क्या है? मराउनों की मौत है। 2 मौतें हैं, एक जिस्मानी, एक रूहानी। एक मुकद्दसीन की मौत, ये क्या है जी? एक मराउनों की मौत, शैतानों की मौत, लानतियों की मौत। मरते सब हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? मसीह में मर जाते हैं। जो मसीह में मरते हैं वो जिंदा किए जाएंगे। वो मरते नहीं बल्कि क्या होते हैं? सो जाते हैं। प्रेज़ गॉड। जी करते हैं क्या? वो सो जाते हैं। और जो शैतान में मर जाते हैं उनको भी उठना पड़ेगा, उनको अपना साथ देना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? मौत 2 किस्म की है। एक क्या है? मुकद्दसीन मौत जी। मुकद्दस सबूर की किताब उसका ज़बूर में अगर देखें तो उसमें क्या लिखा है? मुकद्दसीन की मौत कैसी है? खुदावंद के पाक कलाम में 116 ज़बूर है। एक 116 ज़बूर उसकी 15 आयत में लिखा जी। पास खुदावंद मुकद्दसीन की मौत देखें जी। 116 ज़बूर उसकी 15 आयत। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत ग्राम कदर है। कितनी कदर है जी? बहुत ज्यादा कदर है। बहुत ज्यादा कदर है, थोड़ी कदर नहीं, ग्राम बेशुमार कदर। उसकी बहुत वैल्यू है। जो क्या है? मुकद्दसों की मौत है। मुकद्दस लोग जब मरते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो खुदावंद के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। क्या करते हैं जी?
इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि वो मुकद्दस लोग हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा ने उनको ब्लेस्ड किया है। वो बदी के खिलाफ जंग करते हैं, वो बदी को साथ नहीं चलते बल्कि बदी के खिलाफ चलते हैं, इसलिए वो मुकद्दस है। उनकी मौत की कदर भी बहुत ज्यादा है। प्रेज गॉड, ये खुदा का पाक कलम बताता है। और जो लानती लोग हैं, मलाऊन लोग हैं, उनकी कोई भी कदर नहीं। प्रेज गॉड, उनकी कोई भी कदर नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 25 बाब, उसके 25 बाब में लिखा है, जब पहली आयत से 13, जी सुनिए जी बस भाई जी, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, कौन आएगा जी? इब्ने आदम कौन? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, और तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चिरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। भेड़ों को तो अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करेगा और बकरियों को अपनी बाईं तरफ खड़ा करेगा, और दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। कौन से लोगों? मुबारक लोगों। ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को, इस बादशाही को मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रेज गॉड। किनको कहेगा? मुकद्दसीन लोगों को। ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस बादशाही को मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और जो दाहिनी तरफ खड़े होंगे उनको क्या कहेगा? अय मलाउनो, अय लानतियों, मेरे सामने से दूर चले जाओ उस हमेशा की आग में जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। प्रेज़ गॉड। किनको कहेगा? जो शैतानियां करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी लूतियों में गुजार दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी बुराई में गुजार दी, जिन्होंने खुदा के कलाम को ना पहचाना, खुदा को नहीं पहचाना, उनको खुदा क्या कहेगा? अय मलाउनो, मेरे सामने से दूर हो जाओ उस हमेशा की आग में जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। कैसी मौत चाहिए जी? मुकद्दसों की मौत चाहिए। मुकद्दसों की मौत के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, इब्लीस को शिकस्त देनी पड़ेगी, अब खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्ते। कितने फरिश्ते इब्लीस के? इब्लीस की बहुत फौजें हैं मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहनों भाइयों, बहुत फौजें हैं इब्लीस की। खुदावंद के फरिश्ते भी बहुत हैं। प्रेज़ गॉड। जब हम अपने मुकद्दसीन की मौत मरेंगे तो खुदावंद के फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करेंगे। और जो लानतियों की मौत मरेगा वो किधर जाएगा? जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। प्रेज़ गॉड। आज सोचना है, रात को अपने ऊपर कपड़ा लें, कपड़ा लेकर अपनी लाइफ के पीछे पीछे जाएं, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी लाइफ को देखें। मैं भी देखता हूँ, देखूंगा। क्या हम मलाउनों की मौत तो नहीं मरना चाहते? क्या मलाउनों की मौत तो नहीं मरना चाहते? क्या हम मुकद्दसों की मौत मरना चाहते हैं? तो मुकद्दसों की मौत मरने के लिए हमें क्या है? खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा। जैसे भाई ने बोला पहले सूर में, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो वो जो कुछ करे बार बार होगा। लेकिन शरीर ऐसे नहीं है, बल्कि वो उसे की मानद है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है। आज मेरे अजीजों, हमने सोचना है रात बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, देखें क्या खुदावंद हम तेरे साथ वफादार हैं या बेवफा हैं। प्रेज़ गॉड। अगर बेवफा हैं तो हमारी मौत जो है मेरे अजीजों शरीरों की मौत होगी, लानतियों की मौत होगी। और खुदा के साथ वफादार हैं तो हम मुकद्दसीन की मौत मरेंगे और हमारा हिस्सा जो है खुदावंद की बादशाही।
प्रेज गॉड। आज मेरे अजीजों सोचने की जरूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों एक हवाला पढ़ेंगे, आखिरी हवाला। प्रेज गॉड। हमने गौर करना है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी कैसी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस? लूका की इंजील उसका 16 बाब उसकी 19 से 21 है। दो चीजें देखें, ये खुदावंद का पाक कलाम हमें छुड़ा सकता है। इसको अगर हम अपने दिल में रखेंगे तो मेरे चीजों हम खुदा को फजल से, खुदावंद यीशु सिनासी के करम और फजल से हम इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी, एक दौलतमंद था जो रूहानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। प्रेज गॉड। जी भाई, एक बस एक है, एक क्या था? दौलतमंद था। वो क्या करता था? अरवानी और महीन कपड़े पहनता था और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। क्या था? एक अमीर आदमी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे खाने खाता था, अच्छी जिंदगी गुजारता था, उसके पास बहुत पैसा था, उसका लाइफ स्टाइल अलग ही था। प्रेज गॉड। जी आगे जी भाई। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। प्रेज गॉड। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, प्रेज गॉड, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। हालेलुया। भाई जी बस जी भाई। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। उसकी ख्वाहिश थी, उसको कुछ भी नहीं मिलता था, ऐसे ही जिंदगी गुजारता था। तो उसको क्या है, वो उधर उसके घर पर क्या नौकर होगा या कुछ भी होगा। प्रेज गॉड। वो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जो अमीर आदमी है इसके मेज के गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरूं। प्रेज गॉड। लेकिन आगे जी जी भाई। ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। प्रेज गॉड। जी उसने जी बस भाई। और क्या हुआ? ऐसा हुआ कि वो गरीब आदमी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया जी? फरिश्तों ने। वो क्या हुआ? मर गया। और मरने के बाद फरिश्तों ने क्या किया? उसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। आज तो बहुत से पास्टर लोग हैं, कोई भी मर जाता है, कोई गुनाह में भी मर जाता है, जो जैसे भी मर जाता है वो कहते हैं खुदावंद दुआ करते हैं इसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता कर। प्रेज गॉड। मेरे जीजो, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अमल के साथ जिंदगी है, अमल के साथ ही हम इब्राहिम की गोद में जा सकते हैं। प्रेज गॉड। जी जी उसने भैया। आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। प्रेज गॉड। जी भाई। और दौलतमंद ने क्या देखा? दूर से अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा। प्रेज गॉड। और उसने सवाल किया। जी सवाल क्या किया भाई? और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। प्रेज गॉड। उसने क्या कहा? उसने रिक्वेस्ट की, अरे बाप मुझ पर रहम कर। मरने के बाद रहम नहीं होगा मेरे भाइयों, मरने के बाद अपना किया ही भुगतना पड़ेगा। ये खुदा का पाक कलाम हमें बताता है। उसने मरने जीतू नहीं जाने, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। जो दुनिया में रहम करते हैं उन पर रहम खुदा नहीं करता है। प्रेज गॉड। लेकिन उसने क्या किया? उस अमीर आदमी ने मरने के बाद रिक्वेस्ट की कि खुदावंद क्या कर, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान पर तार करे। ये अगर उंगली का सिरा, इसमें कितना पानी जाएगा जी? पकड़ेगी उंगली? जी पकड़ेगी? एक दो ड्रॉप, एक दो ड्रॉप पकड़ सकती है। वो इतना प्यासा था। प्रेज गॉड। लेकिन उसने दुनिया में बहुत ऐशो इशरत की, औरों का माल खाया, औरों को तंग किया, औरों के खिलाफ बातें की। उसने पता नहीं क्या क्या कुछ किया। तो वो क्या करता है? रिक्वेस्ट क्या करता है? आए बाप लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर क्या करे, मेरी जुबान पर लगाए, ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। आज रात को सोचना है, देखना है
क्या मैं उधर जाऊंगा, मर जाऊंगा? अगर इब्लीस में मर जाऊंगा, शैतान में मर जाऊंगा, मुकद्दसीन की मौत नहीं मरूंगा, तो मेरे अजीजों उंगली का सिरा जो है, क्या मेरी जिंदगी ऐसी होगी? क्या मैं उधर जब जिंदा होकर आग में जाऊंगा, आग में तड़पूंगा, तो मेरा पानी मुझे कहाँ से मिलेगा? अभी वक्त है मेरे अजीजों, अभी हम जिंदा हैं, हमारे नथुनों में जिंदगी का दम है, हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। जी भाई आगे बढ़े। जी अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। प्रेज गॉड। बाप इब्राहिम ने क्या बोला कि बेटा याद कर अपनी लाइफ में तूने क्या क्या कुछ किया, और इब्राहिम को क्या मिला, इब्राहिम और लाजर को क्या मिला, लाजर को क्या मिला। प्रेज गॉड। जब वो क्या आगे, जी भाई आगे बढ़े। जी लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। प्रेज गॉड। क्या कर रहा है? वो तसल्ली पा रहा है लाजर, और तू क्या कर रहा है? आग में तड़प रहा है। प्रेज गॉड। जी और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, हालेलुया। जी ऐसा भाई। कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके। जी बस भाई। जी और क्या है? ऐसा कि तुम्हारे और उसके दरमियान, हमारे उसके तेरे दरमियान क्या है? एक बड़ा गड़ा है। गड़ा, घड़े को पार कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। बहुत बड़ा घड़ा है। आज रात को सोचना है, जरूर भाई सोचना है। थैंक यू। जी क्या है? एक बहुत बड़ा घड़ा है, उसे हम पार नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। जी भाई आगे। और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। हालेलुया। उसने कहा, अब्बास है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज। हाँ किथे भेजी? मेरे बाप के घर। मेरे बाप दे घर ते मेरे जेड़े बाकी भरा ने, ताकि वो बच जान। जी आगे भाई बढ़े। जी क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, हालेलुया। ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। जी अब्राहम। जी क्या करे? इसको भेज भाई, खुदावंद क्या कर? इसको भेज। इसको भेज ताकि मेरे भाइयों को बताए। क्या करे? मेरे भाइयों को बताए ताकि क्या करे? वो बच जाएं। जी आगे क्या उसने बोला? अब्राहम ने उससे कहा, हालेलुया। उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, हालेलुया। उनकी सुने। किसकी? मूसा और अंबिया। उस वक्त अंबिया थे, मुकद्दस मूसा नबी थे। आज क्या है? हम खादम लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, पकड़ो तकड़ी के खादम नहीं, जिनको खुदा ने चुना हुआ है। आज क्या है? उनके पास जा, वो उसको क्या करेंगे? बताएंगे। प्रेज गॉड। आज हम क्या करते हैं? अपने लोगों को आगाह करते हैं, खुदा का पाक कलाम बताते हैं। प्रेज गॉड। जी उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। हालेलुया। क्या करे? मुर्दों में से। जी मुर्दों में से कोई आता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। आए खुदा जिंदा जिंदा ही तेरी सताइश करेगा, जैसे आज के दिन में करता हूँ। प्रेज कर। मेरे अजीजों, मरने के बाद कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में किसी ने देखा है? कब्रों में जाकर कोई मुर्दा खुदा का पाक कलाम पढ़ता हो, या कोई सुनाता हो, या सुनता हो? नहीं। कुरान मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। आए खुदा जिंदा जिंदा ही तेरी सताइश करेगा, जैसे आज के दिन में करता हूं। बहुत से लोग हैं जो मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं, बहुत से लोग हैं जो मुर्दों के पीछे चावल भेजते हैं, बहुत से लोग हैं जो मिठाइयाँ बांटते हैं। भाई मर गया उसको स्वाब होगा, लेकिन कोई स्वाब नहीं होगा। ये खुदा का पाक कलाम बताता है। प्रेज गॉड। जी जी भाई क्या कहे? उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, हालेलुया। तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। हालेलुया। वो इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि मूसा, मुकद्दस मूसा और अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर इधर से कोई नबी चला जाएगा वो उनकी भी नहीं सुनेंगे। प्रेज गॉड। आज मेरे अजीजों, दुनिया में ये देखना है, हमने सोचना है, अभी वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि दुनिया में बेनादा कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते।
अभी वापस आ सकते हैं, हम जिंदा हैं, हमारे नफ्सों में जिंदगी का दाम है, हम जीती जान है। जब बस पानी दुनिया से चले जाएंगे तो फिर तौबा का दरवाजा क्या होगा, बंद होगा। प्रेज गॉड, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। प्रेज गॉड, मसीह का नूर उस वक्त हम पर चमकेगा जब हम मुर्दगी से बाहर आएंगे, जब हम जिंदा हो जाएंगे, यीशु मसीह का नारा मारेंगे, यीशु को मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, उसके कदमों पर कदम रखेंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि उसने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जब हम अंधेरे से बाहर आ जाएंगे तो मेरे चीज़ों हम पर खुदा अपने फजल को, अपने कर्म को जारी और सारी कर देगा। प्रेज गॉड जी। ये उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते, अगर मुर्दों में से कोई जी उठेगा तो उसकी भी नहीं सुनेंगे। प्रेज गॉड। आज मेरे अजीजों, इब्लीस ने लोगों को गुमराह कर दिया है, इतनी दुनिया गुमराह हो चुकी है। पहले हम कभी कोई बीमार होता था या कोई गलत लाइन पे चला जाता था तो हम लोग उनको क्या बोलते थे, हमारे बड़े बोलते थे, जाओ जी गिरजेला लो, गिरजेला लो ताकि ठीक हो जाएगा। या आदत बदल जान गया। आज लोग चर्च में भी आते हैं, दुआ भी करते हैं, कराते भी हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करते। हम छोटे छोटे थे तो खुदा के खादम आए हमारे गाँव में, गाँव में आए तो उन्होंने क्या एक जबूर बोला, नशा जाना है बदी दे पासे बन नू, रोक पैर नू भैड़े रहे जान वालिया, नशा जाना है बदी दे पासे बन नू, नहीं सुनदा खुदा दी उस गल नू भैड़े रहे जान वालिया। आज मेरे अजीजों, तो खुदा का पाक कलाम भी सुनते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते। मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद मेरी कौम इसीलिए पीसी जा रही है, दिन ब दिन क्या कर रही है, पीसी जा रही है, नीचे जा रही है, क्योंकि लोग खुदा से दूर हो चुके हैं। प्रेज़ गॉड, मेरी ये दुआ होगी खुदावंद के फजल से कि खुदावंद हमारी कौम को बरकत दे और इनको खुदावंद तब्दील करे, ताकि ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों का इकरार करें। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम क्या है, जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आज अगर हम रहमत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, अशमत चाहते हैं, बुजुर्गी चाहते हैं और हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, तो हमें खुदा यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना होगा और इकरार करके माफ़ी मांगनी होगी और अपने गुनाहों को छोड़ना होगा और काम करना होगा। गॉड ब्लेस यू फ्रॉम, सबको बड़ी बरकत दे।